Uh, Good afternoon, dear students. Today we shall study about types of matrices. Let me explain what is a matrix. Now, matrix is an arrangement of numbers in rows and columns. Suppose numbers are mn. Matrix is an arrangement of mn numbers in m rows and n columns. M rows and n columns. Therefore, the order of the matrix will be m by n. Or you can write matrix को capital letter से. All of you know this. I am writing here matrix, m by n matrix. तो एलिमेंट स्मॉल ए से लिखेंगे. जो नो दिस एलिमेंट इट इज लाइंग इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, therefore it is A11. Second one, it is lying in first row second column, A12, and so on. This one first row nth column. This one A21 second row first column. This is in second row second column, and this one second row nth column, and so on. Last one कौन से में? mth row first column. पहले रोज आती फिर कॉलम. All of you know AM2 and so on. This one किस में? mth row n column. तो ऑर्डर इज m by n. ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स को. और शॉर्ट फॉर्म में ऑल ऑफ यू नो दिस इज मैट्रिक्स है इस ब्रैकेट में AIJ. ऑर्डर इज m by n. इज इट क्लियर? ये है मैट्रिक्स. क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अब let me explain different types of matrices. I am taking here equality of matrices. Two matrices are said to be equal if दोनों जो है वो किसके होने चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है एलिमेंट्स जो है वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल. Now, row matrix. A matrix is said to be row matrix if a matrix has only one row. Column चाहे कितने हैं? Column matrix इसमें one column. Clear? Now, square matrix if number of rows are equal to number of columns. सब पता है आपको. Rectangular matrix इसमें ऑर्डर ये रोज जो है नॉट इक्वल टू कॉलम्स, डिफरेंट हो. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज आर इक्वल टू कॉलम्स. और डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal entries are 0. मतलब example, I am taking here example of a diagonal matrix, a square matrix. I am taking here matrix of third order. Diagonal matrix, square matrix A. मतलब square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal entries are 0. Non-diagonal entries क्या है? सबसे पहले diagonal entries क्या है? जो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये है डायगोनल एंट्रीज. बाकी क्या है? नॉन डायगोनल एंट्रीज. नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरोस. तो डायगोनल एंट्री यहाँ लिखी मैंने 3, दिस 0 0. ये है डायगोनल एंट्रीज. कुछ भी लिख लो. और दिस इज A21 तो नॉन डायगोनल. ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है. A21 नॉन डायगोनल और ये A22 है तो कुछ भी लिख लो चाहे -7. और ये है A23
ये 0 और दिस A31 0, A32 0 और यहाँ कुछ लिख लीजिए 5. तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. Which matrix said to be diagonal? If non-diagonal entries, all non-diagonal entries should be zeros. Now what is scalar matrix? Scalar matrix, first of all, it should be diagonal matrix. Scalar matrix में scalar matrix, a diagonal matrix is said to be scalar matrix. डायगनल क्या होगा? स्क्वायर. और नॉन डायगनल एंट्री 0. और स्केलर में क्या होगा? सारी एंट्रीज, अगर ये 5 है ये डायगनल एलिमेंट्स, एक A11 5 है तो A22 भी 5 होगा, A33 भी 5 होगा. थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स की बात कर रही हूं मैं. ये थर्ड ऑर्डर, ये है स्केलर मैट्रिक्स. अगर ये -5 है, -5 -5. नाउ आई एम कमिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Identity matrix is a scalar matrix in which diagonal entries or diagonal entries should be 1. 1, 1. This is 1. This is also 1. और this is identity matrix. इसको कैसे लिख देते हैं? Identity matrix, unit matrix. ये types of matrices और भी ले लेंगे, और भी different हैं, कई हैं. हाँ, इसके बाद मैं लेती हूँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स? ये भी एक तरह का ट्रायंगुलर है जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्री से नीचे भी 0 हो, ऊपर भी 0 हो. तो ये जो है ये हमारा ये बन गया आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? तो डायगोनल मैट्रिक्स, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना. डायगोनल एंट्रीज ये होनी चाहिए नॉन जीरो. ये 5 है और ये 2 3 है, ये मैंने 7 लिख लिया. इसमें ये नॉन डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज से ऊपर भी 0, नीचे भी 0. दिस मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये सारा आपको आता है, इसलिए मैं सारा लिख नहीं रही, बता रही हूं, फिर से रिवीजन हो गया है. अब बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, राइट? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सी स्टूडेंट्स, सारी एंट्रीज डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनसे नीचे जो है वो क्या होंगी? 0. तो डायगोनल एलिमेंट पहला क्या है? A11. सपोज करो लिख लिया कोई नंबर 5, और इसमें बोल रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे की एंट्रीज होंगी 0. डायगोनल एंट्रीज ये है, लिख लो ऐसे पहले. A22 की जगह 7 लिख लिया, A33 की जगह 3 लिख लिया. 3x3 मैट्रिक्स है, ऐसे लिख लिया पहले. मैं बोल रही हूँ नीचे की एंट्रीज क्या होंगी? 0. ये भी 0 हुई और ये भी 0 हुई, और यहाँ कुछ भी आ सकता है. क्लियर स्टूडेंट्स? 3 4 5. ये मैट्रिक्स जो बना, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? नाउ लेट मी एक्सप्लेन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स in which all ये जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, इससे ऊपर वाली एंट्रीज क्या होंगी? 0. यहाँ मैं लिख रही हूँ 7, A11 3 5. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ऊपर वाली एंट्री 0 होगी, ये भी 0, दिस इज 0, मतलब A22 भी, ये तो A12 है, A13, और ये दिस इज A23 0 हुआ. और दिस वन एक कुछ एंट्री होगी 5 3 पर, ये जो है ना, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइप्स हमने मैट्रिसेस की. इसके बाद कल हम और कुछ करेंगे. आज के लिए इतना काफी. थैंक यू वेरी मच.